All the students, you can put your attendance into the chat box of this particular session so that your attendance will be recorded over there. For cross tally, I am going to have the attendance downloaded as well with me using the Meet attendance collector. So you can put it in the chat box for your attendance. Okay. So let us move ahead to our topic, pre-stress concrete. So earlier we had discussed different types of pre-stressing as internal pre-stressing and external pre-stressing. Then there was internally or externally pre-stressed. That was one type of differentiation. Second was linear and circular pre-stressing. Now internally and externally pre-stressed, we have discussed that internally pre-stressed means the pre-stressing cable which is stretched and strained, that pre-stressing cable is inside the concrete. Okay, if such kind of pre-stressing we are using, then that type of pre-stressing will be called internally pre-stressed. And if the cables are stretched outside the concrete and are providing pre-stressing effect to the concrete, then that type of pre-stressing will be called externally pre-stressed. We have seen examples also of that. Then second is linear and circular pre-stressing. Now what do we mean by linear and circular pre-stressing? Linear can be a linear straight line, linear can be linearly varying, and linear can also contain curves which are not going to complete one revolution. Okay, but circular means curve with higher degree of curvature. With higher degree of curvature, the curvature is going to complete its revolution somewhere or another. So if the degree of curvature is more, we call it as circular pre-stressing. If the degree of curvature is less, we call it linear pre-stressing. Okay, so that was that. Then third type or third differentiation was pre-tension and post-tension. We have discussed on this that what is pre-tensioning, what is post-tensioning, how pre-tensioned concrete is made, how post-tensioned concrete is made, and if we can say this is the most important type of variation between pre-stressed concrete that we come to see. ओके, दैट मीन्स अगर हम किसी भी तरीके की प्री स्ट्रेसिंग की बात करते हैं तो ये सारे टाइप में से उसमें से एक प्रॉपर्टी रहेगा, आइदर वो इंटरनली प्री स्ट्रेस्ड होगा या एक्सटर्नली होगा, आइदर वो लीनियर होगा या सर्कुलर होगा, आइदर वो प्री टेंशन होगा या पोस्ट टेंशन होगा. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब a kind of pre-stressing which is done at your particular site or at the required position, then you have to select one of the all the different properties which I am talking about. Okay, so today we are going to start with the fourth differentiation or fourth property, and anchored and non-anchored. Now what do we mean by end anchored and non-end anchored? Okay, you can write down when cables are anchored at the ends using anchorage, the system is end anchored. When the tension in the cable is transferred to the concrete through the system is non-end anchored. Okay, so suppose that there is hello. अच्छा, हाँ, ओके,
कहाँ जा रहे हो? ठीक है। So, suppose there is a beam which is pre-stressed. Okay. So if this particular beam supported, can be supported at both the ends, and this is the centroidal axis, and this is the cable. So if the cable is anchored, if the cable is anchored at both the ends, okay, then that this type of pre-stressing will be called end anchored. Okay. But suppose there is a beam, and for this particular beam, this is your support condition, and for the support condition, this is the cable, and no anchorages are provided at the end. दोनों में से कोई भी एंड के ऊपर एंकरेजेस प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन स्टिल जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड द स्टील. कंक्रीट और स्टील के अंदर, मतलब प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जिस तरीके से कंक्रीट और स्टील एक दूसरे के साथ में कास्टिंग के वक्त जुड़ जाते हैं, सो दैट एडिशन, दैट पर्टिकुलर bond between the concrete and steel is liable for transfer of the pre-stress to the concrete section. So in such kind of pre-stressing, it will be called non and anchored. Okay. So this is another type of concrete, end anchored and non end anchored. Okay. Then there is fifth one, bonded and unbonded cables. Okay. Now bonded and unbonded cables, what do we mean by that? So if you want to write down bonded cables are those that have bond between pre-stressing steel and surrounding concrete for their entire length. जब आपके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा केबल कंक्रीट के साथ में प्रॉपरली बॉन्डेड है, तो दैट पर्टिकुलर सेक्शन और दैट पर्टिकुलर सिस्टम विल बी कॉल्ड बॉन्डेड pre-stressing. Okay. But if the cable is not bonded with the concrete completely throughout the length, then that particular uh, system will be called unbonded system.
Okay, so we're discussing bonded and unbonded cables. So bonded cables means if the cables are uh, those that have bond between pre-stressing steel and surrounding concrete for their entire length. Please mind that the bonding should be through the entire length. So in pre-stressed concrete, you can say in pre-tensioned concrete, you can say the cables are bonded because throughout the length the cable is bonded with the pre-stressing steel is bonded with the concrete. But if you say that it is post-tensioned, then the chances of bonded are very less. To be bonded with concrete throughout the length, your grouting material should be filled. आपका जो ग्राउटिंग करेंगे जैसे वो होल है वो होल को आप कंक्रीट से फिल करेंगे तो वो फिलिंग जो है वो थ्रू आउट द लेंथ होनी चाहिए और वो भी बराबर से कॉम्पैक्टेड, कहीं पे भी एयर गैप वगैरह नहीं होना चाहिए. अगर इस तरीके से आप ग्राउटिंग बराबर से कर सकते हैं पूरे होल के अंदर, देन ओनली हम पोस्ट टेंशनिंग में कह सकेंगे कि इट इज काइंड ऑफ बॉन्डेड केबल या बॉन्डेड केबल का इफेक्ट हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं. आप आईएस कोड जब पढ़ेंगे आईएस 1343 तो जो जितने भी आपको क्लॉजेस वगैरह मिलेंगे उसमें जो टेक्निकल टर्म्स है दे आर लाइक दिस कि वेदर द केबल इज बॉन्डेड, अनबॉन्डेड, बॉन्डेड के लिए इतना परसेंटेज कंसीडर करना है, अनबॉन्डेड के लिए इतना परसेंटेज कंसीडर करना है, लाइक दैट. ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द पोस्ट टेंशन पोजीशन विल बी अनबॉन्डेड. ओके, सो अगर हम बॉन्डेड केबल्स की बात करते हैं तो प्री टेंशन कंक्रीट रहेगा या प्री टेंशन कंक्रीट में हम केबल की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो बॉन्डेड रहेगी और पोस्ट टेंशन के अंदर अगर हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अनबॉन्डेड. ओके, सो प्री टेंशन सिस्टम्स आर ऑलवेज बॉन्डेड. इन पोस्ट टेंशन सिस्टम्स बॉन्डिंग इज ऑफन अचीव्ड बाय ग्राउटिंग ऑफ द केबल डक्ट्स आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग. आपका प्री स्ट्रेसिंग होने के बाद में उसमें हम लोग ग्राउटिंग करते हैं, बट प्लीज रिमेंबर दैट द ग्राउटिंग शुड बी कंप्लीटली थ्रू आउट दैट डक्ट. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट लिक्विड कॉन्क्रीट ग्राउट same strength, the strength of that particular grout should be same as the pre-stressed concrete with which the section has been built. Okay, so the remaining concrete means जो मेन concrete है जिससे हमने सेक्शन कास्ट किया, ट्रक में डाला, लेके आए साइट के ऊपर, उसमें होल वगैरह पहले से थे, तो मेन सेक्शन का जो स्ट्रेंथ है और आपके जो ग्राउटिंग का स्ट्रेंथ है वो दोनों स्ट्रेंथ जो है वो सेम होना चाहिए. इतना सेम स्ट्रेंथ का ग्राउटिंग आपको प्रोवाइड करना है और ग्राउटिंग पूरा थ्रू आउट द लेंथ होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे एज द इफेक्टिवली बॉन्डेड. In some post-tension systems, the cable are not embedded in concrete. In these cases, they are unbonded. And special care to protect from corrosion is required for these systems. Bonded और unbonded के अंदर जो important phenomena है that is related to the corrosion of the cable. If the cable is bonded, then the chances of corrosion are very less. If the cable are unbonded, then the chances of corrosion are more, and there should be special care that should be taken so that the corrosion can be avoided. Then there is next type, sixth one, precast cast in situ and composite construction. Now, pre-tensioning, post-tensioning, all these things can be done by different ways. Now, pre-tensioning is done precast. Okay, pre-tensioning is done precast. Cast in situ pre-tensioning is very rare to see. Okay, very rare to see cast in situ pre-tensioning. Pre-tensioning. Now, post-tensioning, which we see, in post-tensioning, pre-casting is done, and then at the site, the tension is applied in the cable. The concrete is cast pre-cast. Okay, the concrete blocks or the concrete members which are required, they are cast pre-cast, and the pre-tensioning is applied on cast on the site. Now, such kind of construction can be called as composite construction. Okay, so precast, cast in situ, and composite type of construction. This is different types of pre-stressing that can be done.
In that, precast members are cast away from their final location of use. Precast members are cast away from their final location of use. जहाँ पे उसको यूज करना है, जहाँ पे उस मेंबर का फाइनल लोकेशन है, जहाँ पे उस पे लोड आने वाला है, उस जगह को छोड़ के उससे कहीं दूर कोई कास्टिंग यार्ड में या कोई जगह के ऊपर जब हम लोग उसको कास्टिंग करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, हमारा प्री कास्ट हो जाता है. Cast in situ members are cast where they are used. Okay, so this is very basic and simple explanation of these particular types. So I hope you understand that. Then 7 is fully and partially pre-stressed. Now, what do we mean by fully pre-stressed and what do we mean by partially pre-stressed? Okay, so fully pre-stressed means there is zero tension in the member. Okay, and when we talk about partially pre-stressed, then means there is some amount of tension, there is some permissible tension that is allowed in that particular concrete. Now that tension is not going to be exactly the tension that was supposed to come because of the direct bend. Okay, that is not going to be exactly that amount of tension. But after negotiating with the bending, जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है और जो आपका प्री स्ट्रेस है, दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, उसके बाद में जो हमारे पास में स्ट्रेस डायग्राम अवेलेबल होता है आफ्टर द प्री स्ट्रेस, after considering the effect of pre-stressing as well as the effect of external and internal loads. इन इफेक्ट्स को कंसिडर करने के बाद में अगर हमारा स्ट्रेस डायग्राम कंप्लीटली कंप्रेशन के अंदर है, कंप्लीटली टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर बोथ आर अंडर कंप्रेशन, then that is called zero tension condition, and for zero tension condition we can say that it is fully pre-stressed. Okay, and if we say partially pre-stressed, that means either in transfer stage or service stage. What is transfer stage and what is service stage we'll discuss later, but in transfer stage or service stage, in any of the stage, कहीं पे भी टॉप फाइबर में या बॉटम फाइबर में अगर थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, वो टेंशन हमारे परमिसिबल रेंज में है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, ये हमने अलाउ किया है कि हम इतना ज़्यादा प्री स्ट्रेसिंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्री स्ट्रेसिंग करेंगे उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का कंक्रीट लगेगा, उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का आपको स्टील वायर लगेगा, उतना ज़्यादा आपको उसके अंदर स्ट्रेस डालना पड़ेगा, हैवी मशीनरी और सब चीज़ लगेगी. तो हो सकता है कि आप ऐसा प्रेफर करें कि भाई ठीक है, मैं थोड़ा सा टेंशन आया तो चलेगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करना चाहता हूँ. तो देन देयर इज ऑप्शन ऑफ पार्शियली प्री स्ट्रेस्ड. What happens in partially pre-stressed is that in transfer or service stage, you let the top or bottom fiber to go into tension up to the permissible limit. Okay, so that kind of pre-stressing is called partially pre-stressed. So if you want, you can write down, in fully pre-stressed structures, no tension develops in concrete. In fully pre-stressed structures, no tension develops in concrete. And in partially pre-stressed, some tension is permitted to be developed in the member. So in partially pre-stressed, some tension is allowed. Okay, so if we see, there are three different kinds of possible scenarios that can arise. Okay, there are three possible scenarios that can arise. Okay, first possible scenario is no tension, means there is no tension in the member, the complete member is all the time in service as well as transfer stage, both the time the member is under compression. Okay, every fiber is in compression, so that is one stage. Second is tension below capacity और अंडर कैपेसिटी और परमिसिबल, ठीक है, कोई भी वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं. तो हम लोग टेंशन अलाउ कर रहे हैं, लेकिन परमिसिबल लिमिट्स तक ही टेंशन को अलाउ कर रहे हैं. ठीक है, जितना हमारे को नो क्रैकिंग, कंक्रीट में क्रैकिंग ना हो और हम लोग अलाउ कर सकें, उस हिसाब से हम लोग उतना या उसकी कैपेसिटी के बिलो कितनी टेंशन कंक्रीट ले सकता है, 2 MPa का टेंशन कंक्रीट ले सकता है,
तो 1 MPa 1.5 MPa तक हम जाने देते हैं। तो बिलो दैट कैपेसिटी जो हम लोग टेंशन को रखते हैं, जिसमें क्रैकिंग बिल्कुल भी नहीं होती है कंक्रीट के अंदर, सो दैट इज सेकंड कैटेगरी। एंड देन देयर इज थर्ड कैटेगरी। इन थर्ड कैटेगरी टेंशन एज इन आरसीसी। एज इन आरसीसी मतलब कि हमें फिर नीचे स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्री स्ट्रेसिंग तो रहेगा ही, जो उसका प्री स्ट्रेसिंग इफेक्ट है वो इफेक्ट देने के लिए, लेकिन उसके सिवा इतना ज्यादा टेंशन आता है कि उस टेंशन को लेने के लिए मुझे उस मेंबर को एज एन आरसीसी मेंबर डिजाइन करना पड़ेगा और बॉटम में स्टील भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ कंपोजिट स्ट्रक्चर where the effect of pre-stressing is also considered and also the remaining stresses are being nullified using the RCC design. Okay, so ये दोनों चीज यूज करनी पड़ सकती है। तो स्ट्रक्चर के अंदर दिस इज फुल्ली प्री स्ट्रेस कंडीशन एंड दिस इज पार्शियली प्री स्ट्रेस कंडीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप or next thing that we are going to discuss is stages. Different types of stages, loading stages. Okay, so next that we are going to discuss is stages of loading. Okay, now it is important for us to understand that what are the different stages of loading. नाउ इट इज नॉट लाइक आरसीसी के भाई आरसीसी में हम लोग क्या करते हैं, एक ही कंडीशन को अज्यूम करते हैं। वो कौन सी कंडीशन होती है कि जिसमें पूरा एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है, उसका सेल्फ वेट भी एक्ट कर रहा है, पूरा एक्सटर्नल लोड भी एक्ट कर रहा है, और टोटल लोड के लिए जो भी बेंडिंग मोमेंट हमारा डायग्राम बनने वाला है वो बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हम टेंशन कॉम्प्रेशन वगैरह निकालते हैं और उसके स्टील और कॉन्क्रीट सेक्शन का एरिया वगैरह हम लोग डिसाइड करते हैं। ये हमारा नॉर्मल आरसीसी के अंदर होता है, लेकिन प्री स्ट्रेसिंग में ऐसा नहीं है। प्री स्ट्रेसिंग के अंदर देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है कि कंक्रीट अलग अलग जगह पे फेल हो सकता है। पहला पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है कि जब वो कास्ट किया जा रहा है, कास्ट करते वक्त भी कंक्रीट फेल हो सकता है, पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज कौन सा है आपका, ट्रांसफर स्टेज है। ट्रांसफर स्टेज कौन सा स्टेज होता है, जिस स्टेज के अंदर हम लोग केबल को स्ट्रेच करेंगे और वो केबल को हम लोग कट करेंगे, और कट करने के बाद में अभी तक हमने मेंबर को उसकी जगह पे रखा नहीं है और मेंबर के ऊपर एक्सटर्नल कोई लोड आया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने हमारे केबल को कट किया है। ऐसे सिचुएशन के अंदर उस पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर जो डोमिनेंट फोर्स रहेगा वो प्री स्ट्रेसिंग का फोर्स रहेगा। ओके, सो दैट इज अनदर स्टेज। देन देयर इज आल्सो अनदर स्टेज विच इज कॉल्ड सर्विस स्टेज। अब हमने उस मेंबर को प्री स्ट्रेस कर दिया, उसको उठाया, जगह पे ले गए और उसकी जगह पे रख दिया। अब उस पे से लाइव लोड ट्रक वगैरह सब पास हो रहे हैं, या फिर अगर हमने उसको एक मॉल वगैरह में बनाया है तो उसके ऊपर दुकानों वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो गया है और लोगों की आवाजाही उस पे से स्टार्ट हो गई है वो स्लैब के ऊपर से। तो इस सिचुएशन के अंदर उसके ऊपर उसका जो सर्विस लोड है विच इज द डेड लोड प्लस लाइव लोड, वो भी एक्ट कर रहा है, प्लस प्री स्ट्रेसिंग भी एक्ट कर रहा है। सो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में जो फेलियर है वो बॉटम फाइबर का होगा, और इसके पहले का जो कॉम्बिनेशन था उसमें जो प्रोबेबल फेलियर का पोजीशन है वो टॉप फाइबर का है। तो ये टॉप फाइबर, बॉटम फाइबर, कौन सा फाइबर फेल होगा, कौन सा फाइबर क्रिटिकल है, ये सब चीज समझने के लिए ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर फेलियर कैन ऑकर एट डिफरेंट स्टेजेस, एंड दीज स्टेजेस आर बेसिकली द स्टेजेस ऑफ लोडिंग where different combination of loads are acting on the particular RCC member. Okay, so in stages you can write down, unlike in the case of RCC members, a pre-stressed concrete member is subjected to more than one load that may be critical. Okay, so pre-stressed concrete members are subjected to more than one load that can be critical. Okay, so that is the reason behind having different stages. In normal RCC, there is only one load, which is the external load, which is acting in the downward gravity direction, which is the critical load for our RCC member. But for the pre-stressed concrete member, the critical loads can be of different types. Okay, so first stage is initial stage. In initial stage, in this stage, the member is subjected to pre-stress but not external loads. Okay, so load
is equals to pre-stress only. Okay, only pre-stress is going to act on the section and no external load is going to act on the section. If we see over here, there are two different variations of this, which is first before pre-stress and second is during pre-stress. Okay, now before pre-stress the concrete is very weak. Before pre-stress the concrete is very weak, क्योंकि जस्ट अभी हमने कंक्रीट को कास्ट किया है, उसने अपना 14 डे 28 डे का स्ट्रेंथ गेन किया है, उसके अंदर अभी भी उसके जो केमिकल रिएक्शंस है वो हो रहे हैं, उसके अंदर अभी भी पॉसिबिलिटी है कि क्रीप और श्रिंकेज की वजह से उसमें कुछ क्रैकिंग डेवलप हो सकती है. So this is the significance of the before pre-stress in the initial stage. Okay, the concrete is very weak and should be able to withstand creep, shrinkage and other incidental loads. Other incidental loads मतलब एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक से टकरा जाना, या कोई लेबर का या मटेरियल का या औजार का उस कंक्रीट के ऊपर गिर जाना, या कोई तरीके की ठोकर लग जाना, कोई इम्पैक्ट लोड लग जाना, ये सब चीज जो है ये इंसिडेंटल लोड्स होते हैं. ठीक है, तो इंसिडेंटल लोड की वजह से अभी तक उस पर प्री स्ट्रेसिंग आई नहीं है, अभी तक कंक्रीट ने उसका पूरा जो स्ट्रेंथ है वो गेन नहीं किया है. ऐसे स्टेज के अंदर कंक्रीट बहुत ही वीक और वल्नरेबल पोजीशन में रहता है और उसको क्रीप, श्रिंकेज और अदर इंसिडेंटल लोड्स जो हैं उसको ओवरकम करना होता है. सो दोज आर द क्रिटिकल पोजीशंस फॉर द बिफोर प्री स्ट्रेस. नाउ ड्यूरिंग प्री स्ट्रेस, ड्यूरिंग प्री स्ट्रेस मतलब अभी कंक्रीट ने 28 डेज का हमारा रिक्वायर्ड डिजायर्ड स्ट्रेंथ गेन कर लिया है और हमने उसको प्री स्ट्रेसिंग करना चालू किया. प्री स्ट्रेसिंग बोल रहा हूँ, प्री टेंशनिंग नहीं बोल रहा हूँ. प्री स्ट्रेसिंग और प्री टेंशनिंग में बहुत फर्क है. ओके, प्री स्ट्रेसिंग में पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग दोनों टाइप आते हैं. ओके, सो इट कैन बी पोस्ट टेंशनिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. तो आप ड्यूरिंग प्री स्ट्रेस की अगर बात करें तो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर प्री स्ट्रेसिंग स्टील. द मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील ऑकर्स एट दिस स्टेज. जब हम लोग प्री स्ट्रेसिंग के लिए केबल को स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके उसको एक साइड पे एंकर किया और दूसरे साइड पे जैक लगा के हम लोग खींच रहे हैं, ये दरमियान प्री स्ट्रेसिंग स्टील में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है. इस मोमेंट पे अभी हमने एंकर नहीं किया है, अभी तक वो हमने लोड को हमारे इस पे ट्रांसफर हुआ ही नहीं है अभी तक कंक्रीट के ऊपर. इस पोजीशन में कि जब उसको हम खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं और हमारे डिजायर्ड स्ट्रेस तक लेके जा रहे हैं, उस पोजीशन के अंदर उस प्री स्ट्रेसिंग केबल में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है. मीन्स अगर केबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट इज द मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट इन द लाइफ स्पैन ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग स्टील. ओके, नाउ फॉर दिस स्टेज, ड्यूरिंग प्री स्ट्रेस वाला जो स्टेज है, इस स्टेज के अंदर कितना प्री स्ट्रेस करना चाहिए, इसके लिए IS 1343 1980 स्पेसिफाई करता है कि कितना लिमिट है आपका प्री स्ट्रेस का. तो प्री स्ट्रेस का जो लिमिट है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ FPU. ओके, if you see in the IS code the notation is FHU. Okay, FHU. So FPI should be 0.8 times. मतलब अगर मेरे केबल का टेंसाइल स्ट्रेंथ का कैपेसिटी 2000 MPa है, ठीक है, अगर मेरा यील्ड स्ट्रेस जो है, परमिसिबल यील्ड स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो 2000 MPa है, इसको मैं बोलूंगा FPU. तो मेरा FPI का वैल्यू कितना होगा, 0.8 इंटू 2000 दैट इज 1600 MPa. आर यू गेटिंग इट? दैट मीन्स इवन दो मेरे केबल का यील्ड स्ट्रेस का कैपेसिटी 2000 MPa है, लेकिन मैं 2000 तक उसको स्ट्रेस नहीं कर सकता हूँ. IS 1343 जो है वो क्लॉज भी मैं आपको बता देता हूँ. क्लॉज इज 18.5.1 के अंदर स्पेसिफाई करता है कि आपका जो इनिशियल स्ट्रेस है केबल के अंदर का, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, that should be less than or equal to 0.8 times of FHU. Okay, where FPI is
maximum initial pre-stress behind anchorages, maximum initial pre-stress behind anchorages, and FHU जो है that is ultimate tensile strength. FHU is ultimate tensile strength. Okay, so I hope you understand that these are the different stages. अभी और भी stages discuss करने हैं. So you can write down these particular stages. Initial stage where only pre-stress is going to act on that particular section, क्योंकि वो सेक्शन अभी जमीन के ऊपर रखा हुआ है तो उस पर सिर्फ प्री स्ट्रेस एक्ट करेगा. ओके, और भी आगे हम लोग स्टेजेस डिस्कस करेंगे. अभी तक हम लोग ट्रांसफर स्टेज तक भी नहीं पहुंचे हैं. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो इनिशियल स्ट्रेचिंग हो रही है, अभी तो स्ट्रेचिंग हो रही है, अभी हमने एंकर किया भी नहीं है उसको, अभी हम एंकर करेंगे उसको. ओके, जब हम लोग उसको एंकर करते हैं तो जो थर्ड स्टेज हमारे सामने आता है दैट इज एट transfer stage. Okay, so what do we mean by transfer stage? ट्रांसफर स्टेज कौन सा स्टेज होता है? ट्रांसफर स्टेज पिक्चर में तब आता है जब आपने एक साइड पे एंकर लगाया है, दूसरे साइड पे आप केबल को स्ट्रेच कर रहे हो, और फिर आपका जब डिजायर्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस केबल में आ जाता है तो आप सेकेंड साइड से उसको फिर एंकर करते हो. ठीक है, और एंकर करके फिर आप जो भी स्ट्रेच है उसको पूरी तरीके से कंक्रीट के अंदर अब ट्रांसफर हो रहा है. अब जितना भी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है वो पूरा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दोनों साइड के एंकरेजेस की वजह से आपके कंक्रीट के अंदर पूरी तरह से ट्रांसफर हो रहा है. अगर हम लोग प्री टेंशनिंग की बात करें तो प्री टेंशनिंग के अंदर जैसे ही आपका कंक्रीट कास्ट होता है और कंक्रीट उसका डिजायर स्ट्रेंथ ले लेता है, कास्टिंग से पहले ही हमने केबल को कंक्रीट के थ्रू पास करके उसको स्ट्रेच वगैरह करके रखा था और कंक्रीट को अराउंड द स्ट्रेच्ड केबल ही हमने कास्ट किया था. तो जैसे ही हम केबल को कट करते हैं, कट करने के बाद में केबल रिलीज होता है और केबल का जो पूरा लोड है वो लोड अब कंक्रीट के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, सो दैट पॉइंट जहाँ पे हमने केबल को कट किया है, एंकरेज हो या प्री स्ट्रेसिंग हो, प्री टेंशनिंग हो या पोस्ट टेंशनिंग हो, दोनों ही केसेस के अंदर जब हम केबल को फाइनली कट करते हैं और उसको जैक से अलग करते हैं और अब उसका पूरा जो स्ट्रेस है, पूरा जो लोड है, वो पूरा का पूरा लोड जो है वो आपके कंक्रीट के मेंबर के ऊपर अब ट्रांसफर हो जाता है, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफर स्टेज बोलेंगे. ओके, सो इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट डाउन इन प्री टेंशन मेंबर्स द ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप. इन प्री टेंशन in pre-tensioned members, the transfer takes place in a single step. इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हमने केबल को कट नहीं किया है तब तक हमारे कंक्रीट के ऊपर कोई स्ट्रेस ही नहीं है. एक सिंगल स्टेप में जैसे ही मैं केबल को कट करता हूँ वैसे ही केबल को कट करते ही अचानक मेंबर के अंदर वो स्ट्रेस डेवलप हो जाता है. ठीक है, सो ये होता है प्री टेंशन मेंबर्स के अंदर, लेकिन पोस्ट टेंशन में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, पोस्ट टेंशन के अंदर हमारा ट्रांसफर स्टेज कब आता है? इन पोस्ट टेंशन, इन पोस्ट टेंशन मेंबर्स the transfer takes place in one strand at a time. एक एक स्ट्रैंड को अलग अलग इंडिविजुअली स्ट्रेच किया जाता है. कभी कभी मल्टीपल स्ट्रैंड्स को भी एक साथ में स्ट्रेच किया जाता है, लेकिन जो एंकरेजेस की जाते हैं तो एंकरेजेस करते वक्त आपका एक एंकर करते हैं, फिर कट करते हैं, फिर दूसरी चीज को एंकर करते हैं, फिर कट करते हैं, लाइक दैट. इस तरीके से हम लोग केबल्स को कट करते हैं. द मोटिव ऑफ सेइंग इज दैट इन पोस्ट टेंशन जैसे जैसे आप केबल को खींचते जाते हैं वैसे वैसे आप कंक्रीट ब्लॉक को भी पकड़ के रखते हैं.
दैट मीन्स केबल जब 0 से लेके 1600 एमपीए तक जाता है, वैसे ही आपका जो कंक्रीट का ब्लॉक है, आपका जो क्रॉस सेक्शन है, उसके ऊपर भी ग्रेजुअली प्री स्ट्रेस का इफेक्ट 0 से लेके जो भी उसका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है उतना इफेक्ट आपके सेक्शन के ऊपर भी आते जाता है, ठीक है। और जब फाइनली जाके हम लोग केबल को कट करते हैं, तो कट करने के बाद में लॉसेस वगैरह को कंस्टिट्यूट करके अचानक से वो पूरा आपका ट्रांसफर स्टेज फिनिश हो जाता है, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन मेंबर्स इज दैट के प्री टेंशन मेंबर में जैसे ही केबल कट करते हैं, अचानक से कंक्रीट के ऊपर पूरा कंप्लीट उसका जो लोड है वो आ जाता है। पोस्ट टेंशन मेंबर्स के अंदर आप एक साइड पे एंकर करते हैं, या फिर कि जब दोनों साइड से पुल कर रहे हैं तो दोनों साइड से पुल करते हैं, फिर एक साइड पे एंकर करते हैं, केबल कट करते हैं, दूसरे साइड पे एंकर करते हैं, केबल कट करते हैं। तो सडनली ट्रांसफर स्टेज नहीं आता है, ग्रेजुअली ट्रांसफर स्टेज आता है। दैट ऑल्सो वन केबल आफ्टर अनदर केबल, एक केबल के बाद दूसरा केबल आता है, इस तरीके से वहां पे ट्रांसफर होता है लोड का। ओके, ऑल्सो sometimes the member may lift up due to hogging bending moment. In such situation, the member is also subjected to self-hit under the stage. Now, what does the IS code means to say regarding this? अभी फॉर एग्जाम्पल ये आपका मेंबर है, ठीक है, और ये मेंबर जो है ये जमीन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ये मेंबर जमीन के ऊपर रखा है, और इसके ऊपर ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है, और इस तरीके से प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर का मैं बीएमडी बनाने की अभी कोशिश करूँ, तो इसके ऊपर आपका यूडीएल तो आएगा नहीं सेल्फ वेट का। अभी जो मैं आपको पोजीशन दिखा रहा हूँ इसके अंदर अभी तो यूडीएल आएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो लोड एक्ट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज पी इंटू ई, पी बाय जेड प्लस पी बाय ए। ये दो लोड है जो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर एक्ट कर रहे हैं। ये मोमेंट बिकॉज ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड एसेंट्रिसिटी, एंड द डायरेक्ट लोड बिकॉज ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। दीज आर दी ओनली लोड्स व्हिच आर एक्टिंग। लेकिन सपोज आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए कि अगर हमारे नॉर्मल लोडिंग की वजह से हमारा बीम जो है वो ऐसा बेंड हो सकता है, ठीक है, जो हमारा यूडीएल होता है ना, यूडीएल की वजह से अगर हमारा बीम जो है वो ऐसा बेंड हो सकता है, तो फिर ट्राई टू इमेजिन कि इज इट नॉट पॉसिबल कि हमारे प्री स्ट्रेसिंग की वजह से हमारा जो बीम है वो इस तरीके से बेंड हो जाए, ठीक है, हॉगिंग बेंडिंग हो जाए उसके अंदर। अगर हॉगिंग बेंडिंग होती है तो अब ये भले हमारा ग्राउंड लेवल है और ये ग्राउंड लेवल के ऊपर इस तरीके से इसका ओरिजिनल रेस्टिंग था, लेकिन अब बिकॉज के इसके अंदर प्री स्ट्रेसिंग आ गई है, तो प्री स्ट्रेसिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ये इसेंट्रिसिटी की वजह से P इंटू ई का मोमेंट आएगा। P इंटू ई के मोमेंट की वजह से ये जो है ये डेल्टा आ रहा है, यहाँ पे बेंडिंग हो रही है। अब अगर हम देखें तो इसका डेड लोड भी यहाँ पे एक्ट करेगा, लाइव लोड नहीं एक्ट करेगा क्योंकि अभी तो ये कास्टिंग स्टेज पे ही है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द बेंडिंग प्रोड्यूस्ड बाय द P इन द मेंबर बाय P इंटू ई, क्योंकि वो जमीन से थोड़ा सा लिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है, उसका जो डेड लोड है वो पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा बॉटम सरफेस जो है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है। ऐसे सिचुएशन के अंदर वी कैन से दैट प्री स्ट्रेसिंग के साथ में हमारा डेड लोड भी एक्ट करेगा। सो प्री स्ट्रेसिंग प्लस डेड लोड इज टर्म्ड एज ट्रांसफर स्टेज। ओके, ट्रांसफर स्टेज मतलब प्री स्ट्रेस प्लस डेड लोड। It is not going to be just pre-stress, it is going to be pre-stress plus dead load. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि because of the pre-stressing effect, the member is going to bend in hogging direction. Okay. Then after the transfer stage, there is another stage that is called intermediate stage. What do we mean by intermediate stage? This is the stage of transportation and erection of precast members, and the member should be safe to withstand the transportation stress. Okay, so basically intermediate stage we are talking about transportation. Okay, we are talking about transportation and इरेक्शन। ओके, दैट मीन्स आपका अगर आप कास्टिंग C2 है
या कि आपका जो है वो दूसरी जगह के ऊपर कास्ट होने वाला है, प्री कास्ट है, और वहाँ से आप कास्ट करके अपने साइट के ऊपर लेके आने वाले हैं। तो प्री कास्ट लोकेशन से साइट पे लाते वक्त भी मेंबर डैमेज नहीं होना चाहिए। उसका जो डेड लोड हो, उसका जो लाइव लोड हो, या उसको किस तरीके से पट्टे बांध के हम लोग किस पोजीशन से उठाने वाले हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका डेस्क स्लैब है, ठीक है, और ये डेस्क स्लैब के अंदर इस तरीके से यहाँ पे हॉलो है, और यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग के लिए होल किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाद में जब आपका रोड बनेगा तो इस तरीके से रोड बनेगा, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट वगैरह आएगा ऐसा, लेकिन ये ऐसे ब्लॉक्स रहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स रहते हैं इसको हम लोग ट्रक के अंदर कैरी करते हैं, ठीक है, और फिर वो कैरी करके हम लोग उसको गाड़ी के अंदर रख के साइड के ऊपर लेके आते हैं। तो ऐसे पोजीशन के अंदर ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये फेल नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये ड्यूरिंग दी ट्रांसपोर्टेशन भी फेल नहीं होना चाहिए, और इसको अगर हम लिफ्ट करेंगे क्रेन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई बेल्ट डाला और बेल्ट डाल के हम लोग इसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट लोड आएगा, यहाँ पे पॉइंट लोड आएगा, और ये एक डबल ओवरहैंग जैसा बन जाएगा, जो कि इसका एक्चुअल डिजाइनिंग नहीं है जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया। लेकिन वो कैरी करने के अंदर भी ये टूटना नहीं चाहिए। इसका पर्टिकुलर लोकेशन होना चाहिए जहाँ से हम इसको उठाएंगे तो ये बराबर से उठ जाएगा और ये टूटेगा नहीं। So that is also important. So during transportation and erection also you have to make sure that your structure is safe. So this is also one of the conditions of failure where the member can fail. कहाँ कहाँ फेलियर हो सकता है? पहली जहाँ पे फेलियर हो सकता है दैट इज द ट्रांसफर स्टेज। उससे भी पहले जब आप उसको कास्ट कर रहे हो वो उसका इमीडिएट स्टेज है, तो इमीडिएट स्टेज के अंदर भी वो फेलियर हो सकता है, वो आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है ट्रांसफर स्टेज का फेलियर, उसके बाद आपको देखना है इमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेज का फेलियर जिसके अंदर मेंबर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इरेक्ट किया जा रहा है, ओके। एंड देन देयर इज फाइनल स्टेज। Final stage. This is also called as सर्विस स्टेज। सर्विस स्टेज के दो तीन फंडे हैं। पहला उसका लोड कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस प्री स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। ये इसका लोड कॉम्बिनेशन रहेगा एक्सटर्नल लोड्स का। दूसरा जो प्री स्ट्रेस रहेगा, ओके, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे विथ लॉसेस। विथ लॉसेस की क्यों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? क्योंकि प्री स्ट्रेस के अंदर बहुत से लॉसेस शॉर्ट टर्म लॉसेस हैं, बहुत से लॉसेस जो है वो लॉन्ग टर्म लॉसेस हैं। कुछ लॉस ऐसे हैं कि जैसे ही हमने केबल कट किया एंकरेज के अंदर स्लिप हुआ और वो इमीडिएटली वहाँ पे लॉस हो गया। कुछ लॉस ऐसे होते हैं कि जैसे लॉस ड्यू टू क्रीप इन कॉन्क्रीट, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, लॉस ड्यू टू different properties of concrete, and loss due to creep in steel। तो creep in steel, creep in concrete, loss due to shrinkage, ये सब लॉन्ग टर्म लॉसेस है। ये इमीडिएटली ऐसा केबल कट किया और लॉसेस हो जाते हैं ऐसा नहीं है, ये लॉसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लॉसेस किस तरीके से होते हैं और ये लॉसेस को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो हम लोग फैक्टर ले रहे हैं प्री स्ट्रेसिंग का, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द सेक्शन। एफिशिएंसी यू कैन डिटरमाइन बाय रिड्यूसिंग द लॉस। जैसे 100% अगर आपने प्री स्ट्रेस किया था तो 100% के अंदर से 20% लॉस हो गया, तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 80% है। 80% को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0.8, ओके। So this is how we multiply this factor into the pre-stressing effect or pre-stressing stress, pre-stressing force, pre-stressing का आप जो भी निकालेंगे, all those effect will be multiplied by this। लोडिंग को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, pre-stressing को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे फैक्टर से, फैक्टर हम लोग को कैसे मिलता है? जितना लॉस है वो हम लोग निकालते हैं, उससे हम लोगों को फैक्टर मिलता है, फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। So जो फाइनल स्टेज होता है वो फाइनल स्टेज के अंदर you can say that under this stage a member experiences full loads। Under this particular stage the member experiences full loads। loads उसके ऊपर पूरी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। दूसरा
As in RCC effect of all combination of loads should be considered. जैसे RCC के अंदर जो हम लोग इफेक्ट कंसिडर करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन का, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, या डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं और इनके जो भी 1.5 और 1.2 के मल्टीप्लिकेशंस वाले जो आपके लोड कॉम्बिनेशंस हैं, वो सब इस फाइनल स्टेज के अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं। फाइनल स्टेज के अंदर आप जितने चाहें उतने लोड कॉम्बिनेशंस वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके, देन डिफरेंट लोड्स आर, कौन से लोड्स हैं जो फाइनल स्टेज के अंदर एक्ट करते हैं। ठीक है, फाइनल स्टेज के अंदर जो लोड्स एक्ट करते हैं वो लोड्स कौन से हैं। पहला है सस्टेन्ड लोड। सस्टेन्ड लोड का मतलब वो लोड जो उसके ऊपर कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है। कंटिन्यूसली एक्ट करने वाले लोड्स कौन से हैं। पहला जो लोड है दैट इज प्री स्ट्रेस। प्री स्ट्रेस उस सेक्शन के ऊपर पूरा टाइम एक्ट करते रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो है कंटिन्यूसली एक्टिंग लोड दैट इज द डेड लोड। ये सस्टेन्ड लोड के अंदर प्री स्ट्रेस और डेड लोड, ये दो तरीके के लोड्स हैं जो सस्टेन्ड है, हमेशा स्टार्टिंग से लेके स्ट्रक्चर के एंड ऑफ द लाइफ साइकिल तक ये दोनों लोड एक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ पोर्शन ऑफ लोड दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट। दिस इंक्लूड्स सल्फेट। इफेक्ट ऑफ सस्टेन्ड लोड is magnified due to shrinkage and creep. This effect is magnified due to two factors: shrinkage and creep. Shrinkage and creep. Then second type of load which acts in the final stage, or we can say service stage, is working load. Working load is, this is the load one designed for. ठीक है, ये कौन सा है वर्किंग लोड, ये वो लोड है जिसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस प्री स्ट्रेस। इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो रहा है दैट इज ऑफ दी लाइव लोड। लाइव लोड ले लीजिए, अर्थक्वेक लोड ले लीजिए, विंड लोड ले लीजिए, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ लोड आप लोग यूज करने वाले हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड यूज करके आपको सबसे क्रिटिकल मोमेंट निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल इन हॉगिंग, क्रिटिकल इन सैगिंग। जो भी क्रिटिकल इन हॉगिंग एंड सैगिंग के हिसाब से आपकी क्रिटिकल लोड है, कैलकुलेटेड है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, उनको आपको चेक करके डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, देन देयर इज अनदर लोड व्हिच इज कॉल्ड cracking load. Now what is cracking load? This is the condition of overload when cracks first appear in some types of pre-stressed members. Pipelines. The cracking load represents critical condition. ठीक है, क्रैकिंग लोड का मतलब कैसा है कि आपका पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन के अंदर आप लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोड अप्लाई किया तो लोड को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे इंक्रीज करते करते हम लोग ऐसे पोजीशन के ऊपर पहुंचे कि एक पी मिलता है जो कि क्रिटिकल पी है। ठीक है, क्रिटिकल या क्रैकिंग पी है। ये कैसे पता चलता है? ये लोड इंक्रीज होते होते ये पोजीशन के अंदर हमारा मूवमेंट भी इंक्रीज होगा। मूवमेंट भी इंक्रीज होते 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 एक ऐसे मोमेंट पर पहुंचेगा जिस मोमेंट के ऊपर क्रैक डेवलप होना चालू हो जाएगा। जिस मोमेंट के ऊपर जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस का कंडीशन है कि भाई कंक्रीट इतना टेंसाइल स्ट्रेस ले सकता है, वो टेंसाइल स्ट्रेस का कंडीशन क्रॉस हो जाता है या उसकी बाउंड्री तक पहुंच जाता है, तो फिर वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस का क्रैक डेवलप होना चालू हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एम क्रिटिकल। आपके नॉर्मल लोडिंग और एम क्रिटिकल का जो रेशियो रहता है, इससे आपको सेफ्टी फैक्टर मिलता है। सेफ्टी फैक्टर फॉर द प्री स्ट्रेस कंक्रीट। Okay, now we have already earlier discussed that why high strength material is required for pre-stressing. So high strength material is required in pre-stressed concrete members require relatively high strength at early stage. This is due to the requirement of high compressive strength at transfer. The main characteristics of concrete for pre-stressed concrete are high strength concrete, high initial strength,
low shrinkage, minimum creep, high modulus of elasticity. These are the properties, okay, of concrete that is required. Now, as per IS 1343, the minimum strength of concrete should be at least M30. अगर आपको कोई पूछे कि प्री स्ट्रेसिंग के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, so as per IS 1343 the minimum is M30 grade of concrete. Minimum M30 grade of concrete we should use. For pre-tension minimum grade, और प्री टेंशन ये हो गया पोस्ट टेंशन के लिए, ठीक है, पोस्ट टेंशन के लिए, प्री टेंशन के लिए द मिनिमम ग्रेड इज M40 is M40. In practice, M40 is considered minimum grade. Up to M75 or M80 are also not uncommon. For higher grades, there are also special requirements. Okay. Now, see what are the other conditions which needs to be satisfied. So, minimum cement कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर? 300 kg पर मीटर क्यूब. ओके. नाउ इफ वी कंसिडर फॉर, दिस इज फॉर normal exposure. If the exposure condition is normal, if the condition is not normal, then minimum cement content should be 360 kg per meter cube. For severe exposure, then also जैसे minimum cement content है, there is also clause for maximum cement content. For maximum cement content, (530 kg per meter cube). Okay. Then as per IS 1343/2012. Now this is as per IS 1343/1980. This is. But as per IS 1343/2012, the value is 450 per kg per meter cube. This is as per IS 1343/2012. The new IS 1343. The value is 450 kg per meter cube. Okay. Now प्री स्ट्रेसिंग के अंदर जैसे जैसे आपका कंक्रीट का एज होता है वैसे वैसे उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है. सो द सेकेंड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ with time. So increase in strength can be taken as, this is as per clause 5.2.1. Now in cases where full design load is not imposed within a stipulated period, the increase in strength due to age can be accounted. So it is given in this table: minimum age of the concrete and then age factor. So if it is 1 month, the age factor is 1. If it is 3 months, then the increase in strength is about 10%, 1.10. If it is 6 months,
then increase in strength is about 15%, and if it is 12 months, then the increase in strength is about 20%. This is as per clause 5.2.1. This is as per clause 5.2.1, that increase in strength with time. तो जैसे जैसे आपके कंक्रीट का एज होता है, वैसे वैसे आपके कंक्रीट के एज के हिसाब से उसका स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होता है. कितना इंक्रीज होता है? एक साल के अंदर 20% तक इंक्रीज होता है. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल आपने M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया और सब कॉम्पैक्शन और सब चीज़ बराबर से की, तो एक साल बाद में जो स्ट्रेंथ आपको ऑब्जर्व होगा वो स्ट्रेंथ होगा M30 की जगह पे M कितना आएगा? कैन एनीवन टेल मी? इंस्टेड ऑफ M30 हाउ मच विल बी द 20% इंक्रीज फॉर 12 मंथ्स? 12 महीने के बाद में 20% इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 36 MPa. ओके. 30 MPa जो है वो हो जाएगा 36 MPa. तो आपको अगर यहाँ पे देखेंगे तो 6 MPa का एडेड बोनस स्ट्रेंथ मिलता है बिकॉज ऑफ द increase in strength with time. Increase in strength with time. Okay. So I think it has become very theoretical. So we'll take a break of 5 minutes, and then we'll again start. Okay, with the tensile strength of the concrete. That how much should be the tensile strength of concrete. Okay.
Okay, everyone, welcome back. So we're discussing about the different cases of loading, and in that we started discussion on the final stage. Okay, in final stage we were discussing that how the loading was supposed to occur, sustained loading and working loads. After that, we had a discussion on that what should be the material for concrete, high strength concrete. So high strength concrete, high strength initial, what are the properties of high strength concrete which are required? Okay. Then what is the minimum concrete which is required? So M30 is the minimum grade of concrete which is required as per IS 1343. And if we are doing pre-tensioned concrete, then the minimum grade of concrete which is required is M40. Then a minimum cement content we had discussed, that was 300 for normal exposure and 360 kg per meter cube for severe exposure. The maximum cement content is 530 kg per meter cube as per our current IS code, which is the IS 1343/1980. But as per the renewed IS code, which is not the part of our syllabus, that is 450 kg per meter cube as per IS 1343/2012. अभी ये सब जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि भाई इतना सीमेंट कंटेंट होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, और ये एक आईएस कोड से दूसरे आईएस कोड के अंदर इसके अंदर चेंजेस आते हैं. ये चेंजेस क्यों आते हैं? ये इतना सीमेंट कंटेंट के अंदर क्या पहली बार जो वैल्यू आप दे रहे थे वो वैल्यू गलत थी, अब जो दूसरी वैल्यू आई है? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन. जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होता है उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे पता चलता है हमारे कंक्रीट के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में. अलग अलग रिसर्च पेपर्स जो है वो आईएस कोड के क्लॉजेस को चैलेंज करते हैं और फिर उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंटेशन करके वैलिडेट करते हैं कि आईएस कोड ने जो कुछ भी बोला है वो सही है या गलत है. ठीक है. कई बार एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर ये प्रूव होता है कि आईएस कोड के अंदर जो दिया गया है उससे बेहतर होगा कि हम लोग ये वैल्यू लें. तो इस बेसिस के ऊपर आईएस कोड के अंदर रिविजन्स होते हैं. देन द नेक्स्ट टॉपिक वी वर डिस्कसिंग वाज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ विद टाइम. As we have discussed that the concrete at the age of your 28 days या एक महीने का जो हम लोग कंक्रीट का सेटिंग टाइम और उसका स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो कितना स्ट्रेंथ वो गेन करता है? दैट इज 60% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ अ कंक्रीट कैन गेन. उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो कंसिडर करते हैं, एक महीने का जो स्ट्रेंथ है. तो उतने स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ पे कितना कंसिडर कर रहे हैं? हमारे लिए एज फैक्टर इज 1. जैसे ही 3 महीना गुजर जाता है तो अब एज फैक्टर कितना हो जाता है? 1.1. मतलब स्ट्रेंथ कितना इंक्रीज हो गया है आपका? 10% से उसका स्ट्रेंथ जो है, जो आपने कैलकुलेशन में भले M40 लिया था, लेकिन अभी उसका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कितना हो गया? 10% इंक्रीज हो गया. तो M40 था तो अब M44 हो गया है वो. ठीक है. अगर 66 मंथ्स की ड्यूरेशन में देखा जाए तो उसका 15% इंक्रीज हो जाता है. 15% अगर M40 के ऊपर देखा जाए तो दैट इज अराउंड 6. सो वो M40 की जगह पे अब M46 हो गया. सिमिलरली 12 मंथ्स के हिसाब से अगर देखा जाए एज फैक्टर के हिसाब से, तो अब कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कितना स्ट्रेंथ होगा? दैट स्ट्रेंथ वुड बी अराउंड 1.2 विच इज 20% ग्रेड. सो अगर M40 की हम लोग बात करें तो एक साल बाद में उसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज इक्विवेलेंट टू M48. ठीक है. This age factor and everything is mentioned in IS 1340 clause 5.2.1. Okay. Then next topic is tensile strength of concrete. Tensile strength of concrete. So the tensile strength is determined from modulus of rupture. जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, दैट इज डिटरमाइंड फ्रॉम मॉड्यूलस ऑफ रप्चर. सो FCR मींस मॉड्यूलस ऑफ रप्चर मतलब क्रैकिंग. कहाँ पे क्रैकिंग होती है? क्रैक डेवलप कब होता है कंक्रीट के अंदर? ठीक है. रप्चर. वी आर यूजिंग द वर्ड मॉड्यूलस ऑफ रप्चर. तो हमने ऊपर जो क्रैकिंग की बात की थी कि क्रैकिंग के हिसाब से हम लोग सेफ्टी का फैक्टर निकालते हैं, दैट इज बेसिकली दी मॉड्यूलस ऑफ रप्चर वी आर टॉकिंग अबाउट. सो FCR इज इक्वल्स टू 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK. M
MPa. This is the tensile strength of concrete, where FCR is tensile strength. This is called tensile strength, as well as it is also called modulus of rupture. Modulus of rupture. This is mentioned in the clause 5.2.2 in IS 1343/1980. ओके, कि अगर आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ लेना है, आपको जानना है कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, तो आपको पता चल सकता है. अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक सैंपल लेते हैं कि FCR इज इक्वल्स टू 0.70, M40 ग्रेड को कंसिडर करते हैं 40, तो कितना आएगा FCR का वैल्यू? कैन एनीवन कैलकुलेट एंड लेट मी नो? यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स. M40 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 0.7 अंडर रूट ऑफ 40. 0.7 अंडर रूट ऑफ 40. Okay, so Faisal is saying that 4.43 is going to be it. So आपका जो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर है वो 4.43 MPa आता है. दिस इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ. आपका कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इतना है. मीन्स इससे भी ज़्यादा शायद आपका कंक्रीट टेंशन ले सकता रहेगा, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे क्रैकिंग डेवलप हो जाती है. इतना क्रैक डेवलप हो जाता है कि अब हम उसको बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेक्शन, बट दिस इज काइंड ऑफ नाउ एन आरसीसी सेक्शन. देखो, आरसीसी सेक्शन और प्री स्ट्रेस सेक्शन का फर्क हम लोग देखते हैं. अगर यही लेवल है जिसके ऊपर स्टील है, तो आरसीसी के अंदर हम लोग ये एरिया कभी भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पे बहुत सारा टेंशन आने वाला है और टेंशन की वजह से कंक्रीट फेल हो जाएगा. तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ हम लोग इस लेवल पे कंसिडर करते ही नहीं. हम डायरेक्टली कंसिडर करते हैं कि ये जो AST है यहीं के ऊपर हमारा जो है टोटल लोडिंग जो है वो AST लेने वाला है. लेकिन प्री टेंशनिंग में ऐसा नहीं होता है. प्री टेंशनिंग के अंदर इवन दो हमारा केबल यहाँ से पास हो रहा है, हम लोग नीचे का भी पूरा पार्ट कंसिडर करते हैं, ऊपर का भी पूरा पार्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे क्रैक डेवलप हुआ ही नहीं है. ठीक है, जब क्रैक डेवलप हो जाता है और हम लोग ये वैल्यू को क्रॉस कर जाते हैं टेंशन के अंदर, तो हमारा सेक्शन इंस्टेड ऑफ बिहेविंग लाइक अ प्री स्ट्रेस मेंबर, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एन आरसीसी मेंबर. So this is the difference. That's why this is the significance of modulus of rupture. Modulus of rupture का जो significance है वो ये है, आपको ये वाला जो strength है इसको कभी क्रॉस नहीं करना है. ये strength को अगर आप क्रॉस करोगे तो आपका जो नीचे का पार्ट है, जिसको हम लोग कवर बोलते हैं, कवर, वो कवर वाला पार्ट जो है वो फेल हो जाएगा. और कवर वाला पार्ट फेल हो जाएगा तो आपका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, और आपका जो प्री स्ट्रेसिंग इफेक्ट है वो आपका इफेक्ट कंसिडरेशन में नहीं रहेगा. ठीक है. Now what about modulus of elasticity? Fourth thing to discuss is modulus of elasticity. Now you would think कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो आप लोगों ने सीखा है, या प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर जो आपके यूजुअल लेक्चर्स होते थे, वो लेक्चर्स के अंदर आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे और बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करके टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर का कैलकुलेशन करते थे. दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल थिंग टू डू. ये करने में कोई बड़ी बात नहीं है. आप लोग को मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा एज एन असाइनमेंट. जब आप सॉल्व करोगे यू विल बी वेरी इजीली एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. उन प्रॉब्लम के सैम्पल प्रॉब्लम्स अगर देखने हैं तो आप कृष्णा राजू रेफर कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स के पास में कृष्णा राजू रहेगा, उसके अंदर से आप सैम्पल प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट कर सकते हैं. ऑल्सो मैं सैम्पल प्रॉब्लम्स का PDF बना के आपको वेब अपना जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर एज अ PDF अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन सी इट ओवर देयर ऑल्सो. हम लोग सैम्पल प्रॉब्लम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपका अभी आया ही होगा तो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा तो हम लोग उसमें न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे. यही सब क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला हूँ कि आपका मॉड्यूलस ऑफ रप्चर क्या होने वाला है, आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, किस IS कोड के किस क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि कहाँ पे से इस वैल्यू को लेना है. तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. फ्रॉम objective point of view, not from the subjective point of view, your knowledge should be developed. Okay, so the modulus of elasticity is given, the modulus of elasticity of concrete is given by EC is equals to 5000 under root of FCK. This is given in clause 5.2.3.1.
in IS 1343. अगर आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट चाहिए कि कितना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, स्टील का तो बहुत सिंपल है, उसका 210 इंटू 10⁻³ रहता है, या जो भी उसका स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने वाला बंदा रहेगा, मैन्युफैक्चरर रहेगा, वो आपको ES का वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन EC का वैल्यू तो आपके मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट को मिक्स किया, सो अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पे उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। So for today's lecture we are winding up over here, and in the next lecture we are going to start with the losses in concrete. Okay, with the losses in concrete. Now I am going to give you only a single assignment after the tomorrow's lecture, or whenever we are going to have the lecture for the losses. We are going to discuss all the different losses. सारे losses discuss होने के बाद में हम लोग एक problem losses का solve करेंगे, और उसके बाद में मैं आपको losses और analysis दोनों का मिला के एक लगभग 10-15 problem का एक ट्यूटोरियल रहेगा, जो कि मैं आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड करूंगा. ओके, so thank you for patiently listening to the session, because this was a very theoretical session, so I feel that you will be very sleepy also. So we'll try and conclude it over here, and see you in the next session. Okay, thank you everyone. Those who have not Thank you, provided sir. attendance in the chat box can put their attendance into the